ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਆਪਾਂ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪੀ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪੀ ਆਪਾਂ ਯੂਵੀ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਨਲੀ। ਤਾਂ ਯੂਵੀ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪੀ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ठीक है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵੁੱਡਵਰਡ ਫਿਸ਼ਰ ਰੂਲ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯੂਵੀ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਵੀ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ MSc ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈੱਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1 ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ 1 to 3 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੁੱਡਵਰਡ ਫਿਸ਼ਰ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਵੁੱਡਵਰਡ ਫਿਸ਼ਰ ਰੂਲ। ਵੁੱਡਵਰਡ ਫਿਸ਼ਰ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਰੂਲ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰੂਲ ਫॉर ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸ ਫॉर ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ absorption band of alpha beta unsaturated carbonyl compounds, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਫਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। OH ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ OH ਨੇ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਕਜ਼ੋਕ੍ਰੋਮ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਡਬਲ ਬੌਂਡ 'ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮਿਥਾਇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲਫਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੀਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੀਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਅਗਰ ਲੌਂਗੈਸਟ ਚੇਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਲਫਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਫਾ ਬੀਟਾ, ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ ਗੈਮਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੈਲਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਆ ਬੇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕੀ ਆ। ਬੇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟ ਚੇਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਅਸਾਈਕਲਿਕ ਔਰ 6 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ ਕੀਟੋਨ। ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਔਰ 6 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ ਕੀਟੋਨ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 215 ਨੈਨੋਮੀਟਰ। ਐਂਡ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ 5 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ ਕੀਟੋਨ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 202 ਨੈਨੋਮੀਟਰ। ਐਂਡ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 207 ਨੈਨੋਮੀਟਰ। ਐਂਡ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਐਸਿਡ ਔਰ ਐਸਟਰਸ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 197 ਨੈਨੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਐਲਫਾ ਬੀਟਾ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ असाइक्लिक और
6 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ है जो कीटोन दी, ਉਹਦੀ वैल्यू कितनी है जी 215 नैनोमीटर। ठीक है, तो 5 मैंबर्ड दी अल्फा बीटा ये वैल्यूज़ कितनी है 4 है, चारां दे विच अल्फा बीटा है। ठीक है, चारों वैल्यूज़ दे विच की है अल्फा बीटा है। जिहड़ी सैकेंड वाली है वो अनसैचुरेटेड 5 मैंबर्ड है, 5 मैंबर्ड रिंग ऑफ कीटोन 202 नैनोमीटर। ठीक है, फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स ये कितनी है 207 नैनोमीटर। ते अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स और एस्टर्स ये कितनी है 197। ठीक है, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 200 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 215, ਲੈਟ कर लो कि कोई पार्टी है। ठीक है, उस पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, पार्टी स्टार्ट होनी है। ठीक है, 6 मैंबरस एंटर कर रहे हैं 2:15 मिनट्स से 2:15 बजे वो आए हैं 6 मैंबर। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ये तो याद ही रखना है इदा ही। ठीक है, इन्ना को तो आप याद रख ही सकते हैं। मेन प्रॉब्लम वैल्यू की है वो मैं तुहानूं दस दिंदी हाँ। बाकी ये कि ये वाली वैल्यू है कि आप ये भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि 6 मैंबर रिंग दी है, 5 मैंबर रिंग दी है जी, कि एल्डिहाइड दी सी या फिर एसिड एस्टर्स दी सीगी। तो इनू याद करने के लिए देखो कि एक पार्टी चल रही है, वो 6 मैंबर है जोड़े वो एंटर किए 2:15 बजे। ठीक है, वो ਜਿਹੜੀਆਂ 5 लेडी मैंबरस ਸੀਗੀਆਂ वो एंटर कीतियां। तो जिमें देखो हरेक पार्टी का मान लो कि एक ड्रैस कोड होंदा है। ठीक है, तो ਜਿਹੜੀਆਂ लेडीज़ के लिए ड्रैस कोड की सीगा कि हरेक लेडी ने 2-2 बिंदियां लगा के आनियां, 2-2 बिंदियां मत्थे च। ठीक है, तो 2-2 बिंदियां लगा के आनियां 5 मैंबरस लेडीज़ ने। ठीक है, 2:15 बजे 6 मैंबर एंटर किए है, 5 मैंबरस ਜਿਹੜੀਆਂ लेडीज़ उन्होंने 2-2 बिंदियां लगा के आनियां। तो एल्डिहाइड फिर जिमें स्कूल्स दे विच अपने कोल अपने स्कूल्स जे कोई फंक्शन स्टार्ट होंदा सीगा तां की होंदा सी, या तो कोई वैलकम सॉन्ग गाया जाता सी है ना, या फिर स्टार्टिंग दे लई कोई जिमें की होंदा हो मशाल या फिर दी की होंदी है मशाल ही होंदी है वो जगाई जाती है, या फिर कोई जिमें धार्मिक सॉन्ग गाया जाता है। ठीक है, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ पार्टी स्टार्ट हुई तो अल्लाह के नाम ते 207 रुपए चढ़ाए गए, अल्लाह के नाम ते 207 रुपए चढ़ाए गए। एल्डिहाइड्स मीनस अल्लाह के नाम ते। ठीक है, अल्लाह फॉर एल्डिहाइड्स। तो उस तो बाद हुण देखो धर्म की गल आ गई, धर्म की गल तो लड़ाइयाँ भी होंदियां है ना। हुण देखो जे लड़ाई हो जाए तो हर बंदा 9-2-11 हो जाता है, पर जे एसिड ते एस्टर्स की गल आ जाए तो बंदा 9-7-17 हो जाता है। ठीक है, एसिड्स उत्ते पै गया हाई बस फिर तो कहानी ख़त्म है। तो एसिड ते एस्टर्स के नाम ते तो बंदा 9-7-17 हो जाता, 9-2-11 की जगह पर। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ तुसीं याद रख सकते हो। 6 मैंबर के लिए 2:15 6 मैंबर 2:15 बजे एंटर किए, मतलब 6 मैंबर्ड रिंग कीटोन 215 नैनोमीटर। तो 5 मैंबर्ड रिंग कीटोन मतलब 5 मैंबर है जोड़े 2-2 बिंदियां ला के आईयां सीगियां लेडीज़ 202। उस तो बाद अल्लाह के नाम ते 207 रुपए चढ़ाए सी। ठीक है, फिर एसिड ते एस्टर्स 9-7-17 हो गए सी, एसिड ते एस्टर्स में देख के लोग। ठीक है, तो आई होप कि तुहानू ये चंगी तरह वैल्यूज़ है जड़ियाँ याद हो गई होणगियां। तो आप अगलियां वैल्यूज़ के वल वधदे हां। ठीक है, तो नैक्सट है जो चीज़ अपने कोल वो है ईच अल्काइल
इनक्रीमेंट कदों लगता है, बेस वैल्यू तो आप लगाती। जे सिंपल अपने कोल कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है तो आप सीधा लिख देंगे कि भाई जिहड़ा उहदा लैम्डा मैक्स है वो 207 आउंदा है। बट अगर उहदे नाल कोई इनक्रीमेंट वाला ग्रुप लग्या है तो आपां नूं उहदी वैल्यू विच ऐड करनी पैनी है। ठीक है, इनक्रीमेंट की है, देखो ईच अल्काइल ग्रुप और रिंग रेजिड्यू, ईच अल्काइल ग्रुप एंड रिंग रेजिड्यू। हुण देखो अल्फा बीटा ते गैमा पोजीशन है, अगर अल्फा बीटा ते गैमा पोजीशन ते कोई अल्काइल ग्रुप लग्या होया, अल्काइल ग्रुप तो अगर वो अल्फा पोजीशन ते लग्या तो ऐड करना है 10, बीटा ते लग्या 12, गैमा ते लग्या 18, बीटा फॉर 12। ठीक है, बीटा फॉर 12, ये तुसी याद रख लियो कि बीटा की वैल्यू 12 है, बीटा फॉर 12 तो 10 12 18, 10 12 18, 10 12 18 तो अल्फा की है 10, 18 की है गामा। देखो गामा की फॉर्मेशन किवें हुंदी है, लाइक दिस, एंड 8 किवें पैंदा एवें। तो इन्हां नूं फॉर्मेशन दे नाल रिलेट कर लेना है कि गामा 18 है तो अल्फा है जोड़ा वो 10 है, बीटा फॉर 12, गामा फॉर 18, अल्फा फॉर 10। तो आई होप कि तुहानूं अल्काइल ग्रुप्स दियां पोजीशन वाइज वैल्यूज़ भी लर्न हो गई होणगियां। तो नैक्सट है कि ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन 30 नैनोमीटर। तो इस केस दे विच देखो एक बारी 0 नूं भुल जाओ, 3 नूं याद रखो, 0 नूं भुल जाओ। इत्थे की है, ईच डबल बॉन्ड मीनस 2 नूं एक्सटेंड कर दो 3 तक लै जाओ 30। ठीक है, एवें तुसी याद रख सकते हो। जो तुहाडे कोल इस तो भी बैटर आइडिया है इन्हां वैल्यूज़ नूं याद रखण दा, तुसी प्लीज़ कमेंट करके जरूर दस्सिओ। नैक्सट हैगा ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 नैनोमीटर, तो तुसी याद रख ही लओगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5 नैनोमीटर। अगे होमो एन्यूलर डाई इन कंपोनेंट 39 नैनोमीटर, ये भी तुहानूं याद रखना पैना, होमो एन्यूलर डाई इन कंपोनेंट 39 नैनोमीटर। नेक्स्ट है हुण देखो, हुण जिहड़े रूल्स हैगे आ लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करन दे, वो आपां करने आ डायइन दे लई। ठीक है, डायइन्स दे लई। Next is rules for calculating lambda max of pi star absorption band of dianes. First point is parent heteroannular or open chain diene, इहदी बेस वैल्यू है 214। पेरेंट होमोएनुलर डाइन उहदी बेस वैल्यू है 253। ठीक है, हुण क्वेश्चन ये अराइज होंदा है कि हेटरोएनुलर डाइन और होमोएनुलर डाइन होंदे की है। ठीक है, हेटरोएनुलर डाइन की है, हेटरोएनुलर डाइन वो है कि जो कॉन्जुगेशन जाके दूजी रिंग दे विच कंप्लीट होंदी है। फॉर एग्जाम्पल दिस डबल सिंगल डबल। ठीक है, ये जिहड़ी रिंग है यही हैगी है अपने कोल हेटरोएनुलर डाइन, इहदी बेस वैल्यू होंदी है 214। नैक्सट इज़ होमोएनुलर डाइन। होमोएनुलर डाइन वो होंदी है जिहदे विच कॉन्जुगेशन एक रिंग दे विच ही कंप्लीट होंदी है। जिवें इहदे विच सेम रिंग दे विच ही कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो गई तो ये हैगी अपनी होमोएनुलर डाइन। 2 पॉइंट हो गए अपने। थर्ड पॉइंट है फॉर ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन इज़, फॉर ईच डबल बॉन्ड डबल, एक बारी 0 नूं भुल जाओ। ठीक है, 3 नूं याद रखो। डबल का मतलब होंदा 2 नूं एक्सटेंड कर दिए कितों तक जाऊगा 3 तक। ठीक है, तो इनू आपां लिख या इदां याद रख सकते हैं कि वो 30 है उसकी वैल्यू फॉर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। फिर फॉर ईच अल्काइल सबस्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू, इन्हां दोनों वास्ते वैल्यू होंदी है 5 नैनोमीटर।
फॉर ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वैल्यू होंदी है 5 नैनोमीटर। फॉर ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वैल्यू होंदी है 5 नैनोमीटर एंड फॉर ईच अल्काइड सबस्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू उहदे लिए भी वैल्यू होंदी है 5 नैनोमीटर। नैक्सट है कि जो ऑक्सोक्रोम नाल लग्या होए तो उदों आपां वैल्यू देनी है, ठीक है। वो वैल्यूज़ हैगियां अपने कोल, तुहानूं याद किवें रखना उनका रिलेशन तुहानूं मैं दसदी हां, ठीक है। तो जिवें फस्ट है, फस्ट का तो 0 नैनोमीटर ही है, OCOCH3 उहदा तो 0 नैनोमीटर ही है। सैकेंड OR, ठीक है, उहदा भी तुसीं इदां ही याद रखना, OR नूं 6 नैनोमीटर। SR दे लई मैं तुहानूं याद करन दा तरीका दस दिंदी हां। SR दी वैल्यू कितनी है 30, तो सुपर 30 तुसीं इत्थों इदां याद रख सकते हो। तो नैक्सट हैगा NR2। N का अपने कोल एटॉमिक नंबर कितना हुंदा, N का एटॉमिक नंबर कितना हुंदा है 7 ते 60। सेम जे साउंड कर रहे हैं ना 7 ते 60, तो इत्थे अपने कोल NR2 की वैल्यू हो जूगी 60, ठीक है। तो जिथे हैलोजन लाइक क्लोरीन ते ब्रोमीन लगे होण उत्थे वैल्यू होंदी है 5 नैनोमीटर। नैक्सट आपां कुछ एग्जाम्पल्स करांगे हुण, ठीक है। फस्ट एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हुण असाइक्लिक पेरेंट मॉलिक्यूल है, असाइक्लिक पेरेंट मॉलिक्यूल होवे या फिर हैट्रोएनुलर डाइन होवे, ओपन चेन होवे, तो पेरेंट वैल्यू बेस वैल्यू आपां लैंदे आ 214 प्लस कितना प्लस करना है। हुण देखो 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं नाल, 2 अल्काइल ग्रुप लई कितनी एक्सटेंशन लगूगी 5, तो 2 × 5 2 × 5 कितने हो गए 10 प्लस 10। अपने को लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई 224 नैनोमीटर, ठीक है। दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने कोल CH3 सिंगल डबल, ठीक है। तो ये की है पेरेंट वैल्यू फॉर होमोएनुलर है ना, ये ही कंप्लीट हो रही है कॉन्जुगेशन डबल सिंगल वाली। तो ये पेरेंट वैल्यू है 253, ठीक है। प्लस 2 मिथाइल ग्रुप लगे है, 2 × 5 10, तो 10 आप ऐड कर देंगे। फिर 2 रिंग रेजिड्यू है, देखो जितों आप रिंग नूं ब्रेक कर सकते होइए उन्होंने आप कहने कि वो रिंग रेजिड्यू है। तो ये 2 जोड़े है ये रिंग रेजिड्यू है, ठीक है। रिंग रेजिड्यू लिए भी आप 5 की एक्सटेंशन दें, तो 5 × 2 2 रिंग रेजिड्यू है, तो वैल्यू आ गई 10, ठीक है। तो सारे का प्लस करके लैम्डा मैक्स की वैल्यू अपने को आ चुकी 273 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस तरह नाल आपां सारियां वैल्यूज़ इस तरह नाल हर एक कंपाउंड दी आपां कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपां नैक्सट वीडियो दे विच जदों MCQ करांगे सारा तुहानूं ईजीली समझ आ चुका, ठीक है। थैंक यू। एंड जे तुहानूं कंटेंट रियली पसंद आया तो वीडियो नूं लाइक शेयर ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।